अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कौशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। कांग्रेस पार्टी हिंद सीनियर लीडर पी चिदम्बरम राज्यसभा मज LAC युक मसल वतलावान मरकजी सरकार मंग कर्म ऐवानस मज गए LAC हवाले मुकम्मल जान फराहम करने युद्ध जन दुरुस मुल्कस मज रोजन वालन लूकन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने। Very simple questions which we are asking again and again. Has China conceded anything on hot springs? Have the Chinese agreed to discuss the friction points in the Doklam Junction and in the Depcham Plains? You are creating more buffer zones. What does a buffer zone mean? According to our information, a buffer zone means there will be a no petrol area. China will not petrol. India will not petrol. Does it mean that we are no longer petroling? This is a supplementary demand. Modi ji, you were 13 years finance minister. I can speak on any subject when the demand is there for money. You know the rule. Difference you want? I want to know. I'm sure anything and everything does not include anything and everything. I'm not criticizing anyone. I'm asking questions. No, I'll make only one suggestion. During your long career, you have had the occasion to hold very high positions. And by virtue of that situation, you are well in the know of governance issues. Any diversion I'm not or diverting even the subject. even I'm asking on strategic and border roads. No. As long as it was on that, That's all it I'm was fine. That's all. Sir, it went little beyond. That's all I'm speaking on. That's all I'm speaking. Pointed questions. Pointed questions. Only on that point. Does it mean that we are no longer patrolling in areas where we were patrolling? Number four. I'm not yielding. Number four, the US Defense Department spokesman has said, and our spokesman have also said, that there is massive building of infrastructure on the other side of the LAC, and equally our government is also building massive infrastructure on the other side. Now, what is this infrastructure on the other side? I don't want you to tell me what is the infrastructure on our side. That may be a defense secret. But what is the infrastructure that they are building on the other side? That your satellites will be capturing pictures. We know that they've built roads, bridges, settlements, helipads, communications. Now please tell us, what is the massive infrastructure that China is building? And I don't want you to tell us what is the equally matching infrastructure that you're building on our side. I don't want you to tell us. यपर लोकसभा मज खारज वजीर जयशंकरन हिजब इख्तलाफ तरफ LAC मामले वतलावनस हवाले ऐवानस वोनमुत फौजी तो सफारती सतह पे कोशिश जारी ताहम पज न फौजी जवानन हुंद हौसला कमजोर करन। Sir, sir, in passing, the honourable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. When our Jawans, sir, are standing
Sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing that ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. So, حزب اختلاف ممبر ادیر رنجن چودھری آز لوک سبھا مز راجوری ہند معاملہ وتلاوان ایوان زان دیوان وونمت ز ات واقعس حوالہ چھ مرکزی سرکار طرف کان جواب برو کن آمت یل زن تمو ایوانس مانگ کر ز جموں کشیر حوالہ گژھِ بحث کرنک موقع تہ فراہم کرنہ یون. سر بات یہ ہے کہ سر ہم سب چنتا بھی کر رہے ہیں سر, یہ بڑی چنتا کی وشے بھی ہے سر. جموں کشمیر گھاٹی میں سر یہ بے گناہ لوگوں کی جان جانے کی سلسلہ رکنے کی تھام نہیں لیتے ہیں سر. سر کبھی آتنکواد کی گولی سے, کبھی فوجیوں کی غلطی سے بے گناہ لوگوں کی جان جانا بند نہیں ہو رہے ہیں. سر یہ صدن کے اندر بڑے سینے تان کے کہے گئے تھے کہ 370 دھارا ہٹ جانے کی بات, کشمیر کی بات چھوڑی دیجئے, یہ پیو کے قبضے میں لائیں گے, اکسائی چین قبضے میں لائیں گے. لیکن آج حالت یہ ہو گیا کہ سر جموں کشمیر سے پنڈتوں بھاگ رہے ہیں, پنڈتوں کو ختم کرنے کے لیے سوچی بنائے جا رہے ہیں آتنکوادی کی طرف سے, اور وہ سوچی سر سرکاری دفتر سے نکالے بھی جا رہے ہیں. تو اس حالت میں دیکھ سر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر کی جو مسئلہ ہے سر, اس مدعے کو لے کر صدن میں ایک وستار سے چرچا ہو, اور سر اس طریقے کی فوجیوں کی غلطی سے بے گناہ لوگوں کی جان گئی آج پیپر میں نکالی ہے, کمل کمار, سریندر کمار, انل راجوری میں سر. تو اس وشے کو لے کر سر سرکار ایک بیان تو کم سے کم دے, سرکار کا ایک بیان دینا ضروری ہے سر. ممبر پارلیمنٹ حسنین موصودین آز لوک سبھا مز وادی مز محکمہ صحت کس فقدانس حوالہ ایوانس وونمت ز وادی مز گژھِ ہیلتھ سیکٹر مزید بہتر بناؤنہ باپت سنجیدہ قدم تلنے ین. چیئرمین صاحب بہت شکریہ زیراور میں ایک سنگین معاملہ اٹھانے کی اجازت دینے کے لیے. جناب حال ہی میں سکمز انسٹیٹیوٹ میں ایک کانفرنس ہوئی پلنگس, جس میں یہ کہا گیا کہ نہ یہ کہ جموں کشمیر پر کرٹیکل جو لنگ ڈیزیز کا بڑا بھاری برڈن ہے, بلکہ سری نگر میں جو لنگ کینسر کی انسیڈنس ملک میں سب سے زیادہ ہے. یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک ان ڈیپتھ اس کی ایک تحقیقات کی جائے, اسٹڈی کی جائے, اور اس کے کیا وجوہات ہیں, یہاں کے اس زیادہ بڑے انسیڈنس کے کیا وجوہات ہیں, پہلے اس کے بارے میں کہا جائے. دوسری بات ہے یہ جانا جائے کیا سری نگر کے مضافات میں جو کوئی 10 درجن پر سیمنٹ فیکٹریز اور لائم سٹون مائننگ کا معاملہ ہے, کیا وہاں کا ڈسٹ پولوشن وغیرہ ہے, اس کا کیا رول ہے اس میں, اور کیا اپائے کیے جائیں گے تاکہ وہ روکا جائے. اور دوسری بات یہ ہے جناب بڑا اہم بن جاتا ہے جناب ارلی ڈیٹیکشن. سری نگر میں جو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہے وہ کم ہے. ایک پیٹ سکین ہے 1 کروڑ لوگوں کے لیے. میری یہ گزارش ہوگی کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال اناگ میں ایک پیٹ سکین اور MRI لگایا جائے تاکہ ارلی ڈیٹیکشن ہو, اور اس کے بارے میں جو بھی یہ وجوہات ہے اس سری نگر میں زیادہ ہوا ہے تو وہ وجوہات بھی ظاہر کی جائیں. ممبر پارلیمنٹ لداخ نامگیالن آز لوک سبھا مز دارد آریہ سماجک معاملہ وتلاوان مرکزی سرکارس مانگ کرمز ز امہ سماج کے کلچر تو زبان پوچھر دنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین. بہت بہت دھنیہ سبھاپتی مہودے. میں آپ کے مادھیم سے ایک مہتوپورن وشے سرکار کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں. پورے ہمالیہ چھیتر جو ہے جن جاتیوں کے گھر ہے, بہت سارے جن جاتیاں اپنے دیش میں رہتے ہیں. ان میں سے ایک بہت مہتوپورن جن جاتیہ جو ہے دارد آریہ کمیونٹی ہے, جو کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ابھی ہے, جو گلگت وہاں سے صدیوں سے پہلے وہاں سے آ کے پورے لداخ میں اور کشمیر کی الگ الگ جگہوں پہ بسے ہوئے ہیں. اس میں سر میں بتانا چاہتا ہوں میرے پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کے دا ہنو, گرکون, درسک, گرگردو, چولی چند, شارسے, سناسے اور کرکت, بڈگم, کاکسار, چنیگون اور دراز سب ڈویژن اور کشمیر کے گریز اور تلیل, یہ ایریا میں جو ہے دارد آرین رہتے ہیں, جن کا کلچرل امپورٹنس, الگ ایتھنیسٹی
इस देश का जो है एक अलंकर है। और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए और नेशनल इंटीग्रेशन को देखते हुए इस बात पे तवज्जो दिया जाए, जो 1999 का जो करगिल वार हुआ था वो इसी क्षेत्र में लड़ा गया, जब भारतीय सेना के साथ इस कम्युनिटी ने कंधे से कंधा मिल के कदम से कदम बढ़ के जो है इस देश के सीमा सुरक्षा के लिए अपने जान माल पूरा दाव पे लगा के इस देश के सेवा किया सर। आज ये आर्यन कम्युनिटी जो है पॉपुलेशन वाइज कम हो रहा है, इनके लैंग्वेज जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कल्चरल जो है खतरे में है। मेरे आपके माध्यम से यहाँ कल्चर के ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ इनके कल्चरल को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ इनके लैंग्वेज में जो है जो दार्दी आर्यन लैंग्वेज जिसको हिस्टोरियन कहते हैं, इस दार्दी आर्यन लैंग्वेज को अलग से अलग अलग प्रोग्राम चलाया जाए और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन केंद्र जो लेह और कारगिल में है और कश्मीर में है, इस रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के माध्यम से इनके लैंग्वेज में भी अलग अलग प्रोग्राम चलाया जाए, ताकि इस दार्दी आर्य के जो कल्चर, इनके जो डिस्टिंक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी जो है बरकरार रहे। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह जराये इबलाग सत करान वोनमुत ये जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंट से मुखालिफ कार्रवाई तेज कर आम तब मनशियात मुखालिफ कार्रवाई तेज कर आम युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। देखिए, ड्रग्स का मैंने पहले भी कहा है कि जैसे दहशतगर्दी ने लगभग 30 साल का अरसा जहाँ के समाज को, जहाँ के लोगों को बर्बादी की राह पर पहुँचाया और बहुत सारा नुकसान दिया, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की सरजमीन से हो रही है, जहाँ से ड्रग्स को जहाँ पर भेज के नौजवान को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ के समाज को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ड्रग्स आ रही हैं, मगर खुशी की बात यह है कि बड़ी तादाद में ड्रग्स पुलिस के द्वारा पकड़ी गई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो तस्करी होकर के जहाँ से मुल्क के बाकी हिस्सों में जानी थी वो नहीं पहुँच पाई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो जहाँ कंज्यूमर में, नौजवानों में तकसीम होनी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। हम लोग इस अमल को इसी सख्ती से आगे भी चलाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ड्रग्स का जो सिलसिला है तस्करी का, उसको सख्ती से डील किया जाए और जो लोग इस तस्करी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ हम और भी एफर्ट कर रहे हैं, जो लोग पहले इस राह पे कहीं ना कहीं मुलव्वस हैं, इस तस्करी में, इसकी कंजम्पशन में, जो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनका साथ देने में, उनको इस वबा से बाहर निकालने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़ा काम कर रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर तमीर किया जा रहा है। पहले भी एक सेंटर बहुत बढ़िया हम चला रहे हैं जम्मू में, मगर वो जगह हमें कम पड़ने लगी है। अभी एक नया सेंटर तमीर हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की, बाकी जो लोग उनको जो काउंसलिंग करते हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है। इसी तरीके से कश्मीर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाउनटाउन में चल रहा है जो ड्रग डिटेक्शन में मदद कर रहा है। रेंज लेवल पे भी ड्रग डिटेक्शन सेंटर चल रहे हैं। जहाँ तक कि अब लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी है कि इस तरह के ड्रग डिटेक्शन सेंटर और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खोले जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस एरिया में भी हम लोगों का साथ दें। टीआरएफ ने सर एक और फतवा कल जारी कर दिया है, कितना देखें? टीआरएफ के फतवे बुनियादी तौर पे टीआरएफ एक माउथ पीस है। पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे दहशतगर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह की बयानबाजी का, ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहाँ पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है, जहाँ की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की जाएं, उसी साजिश का जो एक हिस्सा है। टीआरएफ, मैंने जैसे पहले कहा, हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, ऐसा है कि ट्रेनिंग कैंप चलते ही रहे हैं, उनकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं जहां पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश होती है। हम लोग जैसे पहले कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इस साल पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। हमारी बॉर्डर की ग्रिड बड़ा मजबूती से काम कर रही है। बाकी जो ग्रिड्स हैं एंटी टेरर, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह की जो भी साजिश किसी लेवल पे हो रही है उसको भी हम लोग सख्ती से कुचलेंगे और अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है उसको।
اننت ناگس مز آز آل جموں اینڈ کشمیر آنگنواڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز ایسوسیشن طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ہیلپر تو ورکر انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل ورکروں طرف ون آمت یودوے تم محکمس مز پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم انتظامیہ طرف تیت حکم نام جاری کرنے یم ست تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد احتجاج میں شامل ورکروں تو ہیلپروں طرف ایل جی منوج سنہا منگ کرنا آمت تہندین معاملن کن گئی زون دن یون یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن रहे हैं कि जो गवर्नमेंट गवर्नर शासन ने जो ऑर्डर निकाला है जो 60 साल की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हो जाएगी उसको हम रिपेयर करेंगे, लेकिन हम उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं है। इसके खिलाफ है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें पेंशन स्कीम मिलना चाहिए, हमें कुछ ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। जैसे हमने ऑर्डर देखा है कि किस स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर हुई है, लेकिन उनको अपनी स्टेट ने कुछ न कुछ दिया है। हम गवर्नर साहब से चाहते हैं कि आपने जो ये ऑर्डर निकाला हम उसके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं हमें कुछ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए और पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। ये जो आपने स्कीम निकाली है ये जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए आपने पेंशन स्कीम जो लागू की है, लेकिन जब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये जो बूढ़ी हो गई है इसको आप निकाल रहे हैं खाली हाथ, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है आज आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों के लिए? ये कैसा ही है? आप लोग भी समझते हो कि आप लोगों के घर में भी बहनें हैं, माएँ हैं। आप देखो हम खाली हाथ किसके घर जाएंगे? हम अपने बच्चों के पास जाएंगे वो भी बोलेंगे कि आप खाली हाथ लौट गए। हम अपने हस्बैंड के पास जाएंगे वो भी बोलेंगे कि हम खाली हाथ। मैंने अभी सुना है, अभी मैंने यहाँ सुना है कि किसी वर्कर को हस्बैंड ने कहा कि आपको डेरा जो अपना है ये बांध कर रखो, अगर आपको पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई है आपको तलाक हो जाएगा। इसमें खुश है हमारा गवर्नर साहब। अगर किसी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने खुदकशी की या कुछ किया ये उसका केस यपर कलगमस मज आज आल जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर तरफ वन आमत हुक्मनाम तमे आई जारी करने यम तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। मोड़ में पोस कोड़ गुजारे रोजन युजन तो ये हेल्पर वनकस गवर्नमेंट स्कीम बनाए अत रिटायरमेंट कोर हद मुकर्रर तुम क्या यसान अत रिटायरमेंट दपान रिटायरमेंट दिन पेंशन थावन बाकी बस मोड़ मे गई 5 वरी वनकन मे 5 कोड़। हाल ही गवर्नमेंट ने ये HR पॉलिसी लागू करने के लिए ऐलान किया है, जिसके तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को 60 साल की उम्र में रिटायर किया जाए। हमें बताइए इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे जब बच्चे भी अपनी जंजाल में फंसे होंगे, जबकि सरकार ने ऐलान किया है कि अगर वर्कर की शादी दूसरी जगह में होती है उसको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि वर्कर अपनी ड्यूटी अंजाम
बदस्तूर देती है। इसलिए हमने आज ये एहतजाज किया है। अगर सरकार ने ये HR पॉलिसी वापस नहीं किया तो हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। कत रोजन अच्छा क्या गसन वन उस आंगनवाड़ी पे आंगनवाड़ी सेंटर बस खुदायस हवाल गुजारा वन गोस रोजन कह सहारा वन पकन बल्कि रोज दुनिया पे काल जिंद गोस रोजन कह सहारा यहंद वन बुढ़िस कर वन खुदा कर पांच दम वो दियो पे दुहा रत वन अगर खुदा वन करियम त्रा दिलस रहमान पे कर कह सहारा थन कर यपर सोपरस मज आज आल जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल हेल्पर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत ये तम पत्मो कईया वरियों पे महकमस मज पन फरज नुकसान अंजाम दिवान ताहम तम इंतजामी के हुक्मनामों सड़कन पे मजबूर सपदमे। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है तो इनको 60 इयर्स ये करेंगे रिटायर, इनको 60 इयर्स रिटायर करेंगे। हम इसको वेलकम करते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे, हमें ये और हम खाली हाथ नहीं जाएंगे घर। ये आज 35 साल के बाद हमें खाली हाथ भेजते हैं अपने घर, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट रखा है हमने कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लोगे। ये इस ऑर्डर को हम कंडेम करते हैं और ये निकाला है इनका मतलब जो वार्ड एक वार्ड से दूसरी वार्ड की मतलब हेल्पर्स वर्कर्स है, इनको रिजाइन देना है। जिनकी शादी हुई है दूसरे गाँव में उनको रिजाइन है, वो बेचारी केवल रिजाइन देंगे। उन्होंने वो भी नौकरी करते हैं, पहले देते हैं हमें। हम 92 में मतलब इस डिपार्टमेंट में आए और 250 पर नौकरी की हमने। हमारे हेल्पर्स जो है उनको 90 रुपए तनख्वाह मिलता है, उन बेचारों को पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है ये किराया है या तनख्वाह है। फिर हमने प्रोटेस्ट किया, एक साल के बाद देते हैं और ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है बेटियों का इंसाफ। कल हमारी बेटी ने बेचारी, उसको फाइनेंस प्रॉब्लम है, उसने खुदकशी की, 8-9 महीने से बंद है। वो 5000 देते हैं, अब वो 1000 काटा है, अब 4000 रखा है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ दो, हम रिटायरमेंट चाहते हैं। हम रिटायर गुजर बस्ती गुलशनपुर त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जान फराम करना आई, ताहम चुना आज ताम इंतजामिया तरफ का संजीद कदम तुलना आमद यमकिन मकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। सर मेरा नाम नूरी गुजर है, मैं गुलशनपुरा पटाड़ में रहता हूँ। तो ये 2 बस्ती हैं यहाँ गुजर बस्ती, यहाँ नागबाल है एक बस्ती है, पटाड़ गुजर बस्ती। दोनों बस्ती में जनाब सड़कें बहुत खस्ते वाली है, यहाँ सड़कें कोई नहीं। आज तो आप खुद देख रहे हैं, शुक्र अल्लाह का कि आप खुद मौके पर आए, अब मौके पर देखेंगे हालात हमारी कैसी है। हमें कम से कम 20 साल हो गए ऐसे इंटरव्यू दे के थक गए हम, लेकिन सड़क हमारा कुछ भी नहीं बना। जब हमारा बीमार होता है, कोई तकलीफ होती है, रात को गाड़ी बुलाने पड़ती है, कोई ड्राइवर नहीं मानता है। दोनों सड़कें आप खुद देख लो, ये नागबाल से लेकर ऊपर जा रही है रोकनाथ तक सड़क है, ये भी ख़त्म है।
वहाँ गुलशनपुरा से लेकर बहापरदुल सड़क जा रही है, वो भी खत्म है। कि न वोट मांगने के लिए आते हैं तब कहते हैं हम पहले सड़क देंगे, फिर पानी दे देंगे, फिर बिजली दे देंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। जब वोट लेकर जाते हैं वापस में मुड़कर देखते भी नहीं कि अब गुजर बस्ती कहाँ है, बसे हैं, मर गए हैं, जिंदे हैं, हमें कोई भी नहीं देखता है। अभी तक कोई नहीं, ना सड़क वाला, सड़क तो कोई भी नहीं। आप खुद भी देख लो सड़क, 20 साल हो गया हमारी सड़क में, इतने कोई 4 बस्ती में कोई सड़क भी नहीं। हमारी अपील या गवर्नमेंट से जनाब अली आपके गुजारिश में ये है कि हमें सड़क दे दो, हम बहुत मजबूर हैं। आप खुद सड़क देख लो, सड़क की खस्ते हाली है, मेहरबानी करके हमें सड़क दे दो। मेरा नाम मोहम्मद कासिम गुजर है, हम गुलशनपुरा गुजर बस्ती में रहने वाला हूँ। जनाब हमारी सड़क की बहुत प्रॉब्लम है, या इस सड़क की बहुत खस्ते हाली है। यहाँ मेगड़म नहीं, सर बच्चे या बूढ़े इस सड़क में जाते हैं तो सड़क ये चलने की काबिल नहीं, तो गाड़ी की तो बात ही नहीं है। गाड़ी वाले हमारे 2000 यहाँ जब हमें मजबूरी पड़ती है या जहाँ कोई बीमार होता है तो वो कहते हैं हमें 2000 दो, यहाँ गाड़ी ये सड़क ख़राब है, यहाँ हमारी गाड़ी का टरार ख़राब हो जाता है। खान बस्ती लसपुर पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे तम वरी वादों पे इलाकस मज रिहाइश पजीर ताहम इंतजामिया तरफ इंतजामी कार्रवाई अमल मज अन्ना यमकिन तम मुश्किल मज हन आय। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गज जोन दुनियन युद्ध जन लूकन मज पौधे सपद तशवीश दूर करनी। मेरा नाम मोहम्मद अकबर कुरैशी है। हम 90 साल से यहाँ रह रहे हैं। 90 साल से हमें यही करते आए हैं कि अभी खान बस्ती को उठाएंगे। यहाँ पटवारी लिखता है कि आपका कागज जायज है, वहाँ जाते हैं तो सिडको डिपार्टमेंट को कहता है आपको हमने लैंड दे दी। किसी झोंपड़ी बनाते हैं, उस झोंपड़ी वाले को इतना खौफ है कि जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारी अपील है और गुजारिश है, हम 90 साल के बाशिंदे, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमें हमारे बच्चों की ज़मीर को ख़त्म मत किया जाए, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा यहाँ। निहालपुर पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज तरसील लान ही शहर पर तो लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान फराहम करना आय, ताहम चुना अजताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस कुन गज जोन दुनियन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी राइस साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप बार बार जो भी मसला होते हैं आप हमारे तक पहुंचते हैं। हमारा मसला ये है कि जो हमारी ट्रांसफार्म नस्ब हुआ है, तकरीबन 1 साल पहले ये अलाटमेंट हुई है, तकरीबन ये पावर प्रोजेक्ट विंग बारामूला की तरफ से, लेकिन ये जो कंट्रैक्टर हैं मनमानी कर रहे हैं। हमारे तकरीबन हमने 4-5 बार SC साहब के पास गए सोपोर, और उसके बाद एक्जन जो प्रोजेक्ट वर्क का बारामूला में है उनके पास गए। उनने बार बार यही हमारे से वादा किया है कि कल काम लग जाएगा, आज काम लग जाएगा, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। हमारे जो ये नाज़रीन अत खबरनामा गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरन हंद सिलसिल बदस्तूर जारी। मैं दियो इजाजत, खुदा।